So, good evening students. How are you? I think आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने क्लास को रिज्यूम करते हैं. So in the previous class we had a discussion on what was the topic? We had a discussion. We were discussing the facts like the uses and properties of metalloids and then noble acid. We had already done this. We are done with this. Now, today our topic is the uses and properties of some prominent metals that we see in our day-to-day life. Okay, in our daily life. So, the topic for today's class is uses and properties of some prominent metals. Okay students, so this is our today's topic. I think this topic will take I think two classes, at least two classes. As for the matter of your syllabus is concerned, it will take at least two classes, or we can say in that will lump sum it will take 2 to 3 classes to complete this very topic, that is properties and uses of some prominent metals, and then afterwards we will proceed forward towards the properties of non-metals, and then we will complete this chapter. Okay, so without wasting time, let's start. Just moving according to your syllabus, our first metal is, what's that? Our first metal is copper. What is the atomic number of copper? Can anyone say what's the atomic number of copper? I think you guys will be knowing. You can count it. The atomic number of copper is zinc. Zinc comes on 30. So the atomic number of copper is 29. Do you remember? I had asked you, I had ordered you, I had given you a task to remember the atomic numbers of the element up to 36. So you should be very much sound with the atomic numbers of the elements. Now, so atomic number of copper is, the atomic number of copper is 29. The atomic number of copper is 29. The symbol of this is, it is Cu. Why? Because of its Latin name, that is Cu-P-P-R-U-M, cuprum. Okay, so the atomic number of copper is 29. The symbol is Cu, and because of its Latin name, that is cuprum. Pronouncing Latin, L-A-T-I-N. There is no any syllable of R in Latin. Okay, so तो बच्चों ये हो गया हमारा कॉपर. नाउ आपको पता होगा कॉपर का बहुत सारा यूज है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉपर इज इट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री टू मेक वायर्स, टू मेक केबल्स. Okay, because copper is considered to be one of the most ductile metals and one of the best conductors of electricity. I repeat, copper is considered to be one of the most ductile and one of the best conductors of electricity. Silver is considered to be the best conductor of electricity among all metal, and just after silver it's copper. सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वी कैन नॉट यूज सिल्वर फॉर cables, for making cables and wires. Why? Because silver is a noble metal. Using silver to make wires and cables, it will be very much expensive. No one can afford it, isn't it? No one will be able to afford the wires and cables that are running in his or her building. He cannot afford to place or to use silver as wiring, to use silver cables as their wiring.
as a wiring in their houses. Okay, so after silver is the best conductor, but just after silver, copper is considered to be one of the best conductors of electricity. Okay, then silver, copper, and then aluminium. That is why copper and aluminium both are used in making electrical wires and cables. Okay, so this is copper. Now let's write the things. It is a very good conductor of electricity. Just write. It is a very good conductor of electricity, full stop. So, a major portion of the very metal is used by electrical industry. Okay, a very major portion of the very metal is used by the electrical industry. Now write the uses. What are the uses of copper? What are the uses of copper? So the first use is it is used in making coils. Right. It is used in making coils of electric motor, generators, etc. Okay, it is used in making coils. It is used in making coils of electric motors, generator, etc. You can also add electrical transmission wire, but I have already written it. But just write it down over here. Before etc. And electrical transmission wires, etc. Okay, now it's good. Again, just write it from here. It is also used in making utensils, jewelry, coins. It is also used in making utensils, jewelries, coins, etc. What is that? It is used in, copper is frequently used in making coins. When you will read history, not the modern history, the ancient history, you will get to know. I'm sorry, not to see. It's not a use. You will get to know that many new kings who just got thrown, they used bronze, they used silver to make their coins. It was completely dependent on the might and the wealth of the very king. Okay, but copper nowadays copper is one of the most famous metals that is used in making coins. Okay,
कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर। कॉइल आप लोगों ने देखा होगा, पंखा जो होता है, जो पंखा हमारे घर में होता है, दैट फैन, उस फैन के अंदर जब आप उसको खोलोगे तो आप देखोगे ना कि चारों तरफ ऐसे 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 पूरा रेडिश ब्राउन टाइप का कुछ रहता है, बहुत बहुत पतला पतला वायर से पूरा वीव किया हुआ रहता है ना। तो दैट इज कॉपर, दैट इज कॉल्ड कॉइल। तो कहां पे कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर एटसेट्रा। नाउ इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ज्वेलरीज, कॉइन्स। ज्वेलरीज जो आजकल इमिटेशनल ज्वेलरीज आते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन कुछ उनको चाहिए, या फिर बहुत ही आजकल आधुनिक टाइप के ज्वेलरीज बनते हैं महिलाओं के लिए, है ना। तो वहां पर क्या होता है, कॉपर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर बहुत ही कम दाम में रेडीली अवेलेबल है और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन उसके अवेलेबल हो सकते हैं, उसके अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन making utensils, jewelries, coins. Okay. बच्चों ये क्लियर तो दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, आई थिंक। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Okay, students, so I'll be writing the things in a bold way. Okay, कि विजिबिलिटी मैं खुद देख पा रहा हूँ थोड़ी सी गंदी है, तो मैं कोशिश करता हूँ चीजों को और भी बोल्ड वे में लिखने की, ठीक है। ओके, so now it is also used in making utensils, jewelries, coins, etc. Now the next part is it is used in making utensils. The next one is it is used as an electroplated 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 metal electroplated electroplated metal, not metals. Okay, it is used as an electroplated metal. Okay, electroplated metal. Now, one more point about copper. I'll be explaining what is electroplating. You can write. This is not much important, but it is used in plumbing. It is used in plumbing. It is used in plumbing. Okay, it is used in plumbing. Now बच्चों, यहां पे हमारा कॉपर का जो काम है वो हुआ थोड़ा खत्म। आई थिंक दिस टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा होगा, है ना। ओके, इट्स गुड। Okay,
सो नाउ बच्चों, अब आप लोग देखो इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल कोटिंग, एक और वर्ड यहां पे यूज कर देते हैं हम लोग, कोटिंग, COA, COATGING, कोटिंग। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं इसको एक बार और पढ़ लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही थीम इंक में लिखा है। सो कॉपर 29 Cu copper, it is a very good conductor of electricity, so a major portion of the very metal is used by electrical industry। बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है। नाउ इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। आपको पता है, मैंने पहले बता दिया, इसका काम कॉइल बनाने में भी आता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो वो कॉइल होता है फैंस में होता है। अच्छा, टुगेदर विद जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर, जो आपके घर में वायर दौड़ता है या फिर जो मेन लाइन से वायर आता है उस सब में कॉपर होता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ज्वेलरीज एंड कॉइन्स। पहले बताया गया किचन में बनाने के लिए जो बर्तन होता है, किचन का जो बर्तन होता है उसमें भी इस कॉपर का यूज होता है। देन ज्वेलरीज में यूज होता है और देन कॉइन्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, नाउ इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल कोटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल कोटिंग, आप लोगों को शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बताया होगा, बताया कि नहीं? चलो बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बताया है या नहीं? मैंने शायद बताया था, नहीं बताया तो आप लोग बता देना, नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मैं बता दूंगा। बट नहीं, आई रिमेंबर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना होता है ना, सपोज करो इस ब्लैक के ऊपर इस ब्लू का लेयर चढ़ाना होता है, तो क्या करते थे हम लोग ना कि ब्लैक और ब्लू को एक टैग में रखते थे, है ना। ब्लैक के ऊपर अगर ब्लू चढ़ाना है तो ब्लू को बना देते थे हम लोग क्या, एनोड, है ना, और ब्लैक को बना देते थे कैथोड। तो एनोड से उसके बाद फिर इसका ब्लू का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते थे और फिर क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू करते थे, ये जाके डिसॉल्व करता था, डिसॉल्व होकर ये कहां पे चला जाता था, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता था टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पर ये ब्लैक है और ये क्या होता था, ये सॉल्ट में गल के उसके बाद फिर इस ब्लैक के ऊपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगता था। इस तरह से इस ब्लैक पर इस ब्लू का लेयर चढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके बच्चों, तो उसी तरह से कॉपर का अगर मान लो कि कोई आपको दे दे गोल्ड का कॉइन या सिल्वर के कॉइन पे आपको कॉपर का प्लेटिंग करना है, सिल्वर का कोई स्पून है और उस पे कॉपर का प्लेटिंग करना है, तो उस सब केसेस में ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर का यूज किया जाता था, मेटल के ऊपर कॉपर का प्लेट करने के लिए, कोट करने के लिए। ओके, इट इज यूज्ड इन प्लम्बिंग ऑल्सो। प्लम्बिंग में जो पाइप्स होते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स होते हैं, वहां पर भी इसको कॉपर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। ओके, सो नाउ we'll proceed forward with the next metal, which is our next metal। हमारा नेक्स्ट मेटल कौन होने वाला है भाई? तो हमारा नेक्स्ट मेटल होना है किसको? It's none other but iron। So let's start। Let's start. So the next metal is iron. Write it down in your copies. What's the atomic number of iron? What's the symbol? And everything that you know about iron. Whatever you know about iron, just write it down in your copies. So the second one is iron. The second one is iron. What is the symbol? The symbol is Fe. The symbol is Fe. Atomic number is 26. Okay. What is the atomic number?
Probably 26. Not probably, it's 26 because let us recall it. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. 21, 22, 23, 24, 25 and 26. Okay. चलिए 26. Why the name is iron but the small is Fe because of its Latin name. The Latin is ferrum. F-E-R-R-U-M. ferrum. Okay. Now it's clear. अब हम लोग आयरन के बारे में थोड़ा बहुत बच्चों जान लेते हैं. आयरन के लिए क्या है भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली used and cheapest metals. One of the most widely used and cheapest metals. Okay, ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट मेटल्स में से एक है. आप जहां कहीं भी देखने के लिए जाओ, जो कुछ भी देखो, आपको आसपास अपने आयरन जरूर मिल जाएगा. आपके घर में खिड़की है, आपके घर में दरवाजा है, आपके पास बाइक है, कार है, आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, आप एरोप्लेन से सफर कर रहे हो, आप शिप में बैठे हुए हो, हर जगह पे आपको आयरन मिलना ही मिलना है ना. ओके, चलिए अब हम लोग इसके यूज के बारे में देख लेते हैं. भाई इसका यूज कहां कहां पे है. तो इसका जो यूज है ना बच्चों, बेस्ड ऑन, एक लिखिए, बेस्ड ऑन इट्स carbon content, based on its carbon content, there are different kinds of iron. कौन कौन से different kinds हैं भाई? Based on its carbon content, there are different kinds of iron. कौन कौन से ऐसे different kinds हैं? चलो तो देख लेते हैं. The first one is, जो पहला है, that is round iron. Wrought iron. The first one is wrought iron. I repeat, मैं बच्चों इसमें बार बार पेन से हम राइटिंग ओवर एंड ओवर, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर दिखे, है ना. The first one is wrought iron. इस wrought iron में क्या है? The carbon content is, it contains less than 0.1% of carbon. ठीक है, ये क्या है, इसमें 0.01% से भी कम कार्बन रहता है. ओके, सो इट इज क्वाइट सॉफ्ट एंड डक्टाइल. ये क्या है? ये इसलिए काफी सॉफ्ट भी होता है. It is quite soft and ductile. ये क्या है?
सॉफ्ट भी है और डक्टाइल भी है। अच्छा, अब इसका यूज कहां पे है भाई, तो लिख लो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग grills, okay, and electromagnets, grills, electromagnets, and then grills, electromagnets, railings, okay, furnitures, gates, tin roofs, okay, railings, gates, furniture, tin roofs, etc. So, बच्चों, the first category of iron is, the first kind of iron is round iron. round iron का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, तो क्या है कि आयरन में क्या है कि कुछ कार्बन परसेंटेज है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें कुछ कार्बन पहले से प्रेजेंट होता है जिसको कि रिमूव नहीं किया जाता है, ओके। तो ये जो राउट आयरन है, राउट आयरन की स्पेशलिटी ये है कि राउट आयरन में 0.01% से भी कम कार्बन होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है उसका, और डक्टाइल तो होता ही है, आयरन में डक्टाइल मैलिएबल तो होता ही है ना, ओके, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। और इस राउट आयरन का यूज कहां पे, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्रिल्स, जो आपके घर में ग्रिल्स होता है, ठीक है, बाहर वाला, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको पता होगा, द मैग्नेट दैट इज प्रोड्यूस, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, नहीं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए जो आयरन का यूज होता है दैट इज राउट आयरन, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आप देख लो रेलिंग्स, रेलिंग्स जो होता है, रेलिंग भाई आप लोग अपने घर पे छत पे हर जगह पे होगा, रेलिंग्स में, गेट्स में, फर्नीचर, आयरन का आजकल फर्नीचर का भी एक ट्रेंड चला हुआ है, तो आयरन फर्नीचर को बनाने में भी इस राउट आयरन का यूज किया जाता है। टीन रूफ्स, जो रूफ्स होते हैं, टीन रूफ्स होते हैं, वहां पर भी बनाने के लिए इस राउट आयरन का यूज किया जाता है। आई थिंक दिस टाइम द विजिबिलिटी इज मच मोर क्लियरर, isn't it? Yes, अभी फिलहाल विजिबिलिटी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है ना, ओके, ये हो गया राउट आयरन की कहानी। अब हम लोग आ जाते हैं, द नेक्स्ट आयरन इज पिग आयरन, ओके, द नेक्स्ट आयरन इज पिग आयरन। What is this pig iron? Pig iron, चलो लिख लेते हैं PIG, पिग, पिग का मतलब आप लोग जानते ही हो। सो पिग आयरन इज ऑल्सो नोन एज कास्ट आयरन, इट इज ऑल्सो नोन एज पिग, या नहीं तो आप इसको यहां पर लिख दो ना भाई, पिग और कास्ट आयरन, ठीक है। पिग आयरन इज ऑल्सो नोन एज कास्ट आयरन। द कार्बन कंटेंट ओवर हियर इज the carbon content over here is 2, it contains 2 to 4% of कार्बन। कितना परसेंट कार्बन ये कंटेन करता है? सो इट कंटेन्स about 2 to 4% कार्बन, ओके, 2 to 4% कार्बन। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ, 2 to 4% कार्बन है तो क्या है कि ये थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है, रफ हार्ड टाइप है, तो इसमें से सॉफ्ट वर्ड, इस वाले लाइन को आप रिमूव कर दो,
पिग आयरन के बारे में हमने जान लिया। राउट आयरन में 0.1 के अप्रोक्सीमेटली वहां पे कार्बन कंटेंट होता है, लेकिन पिग या कास्ट आयरन में 2 से 4% ऑफ कार्बन होता है ना। ओके, अब इसके यूज के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, क्या है अभी। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्रिल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा, वो राउट आयरन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें लिख लीजिए इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रेन पाइप्स, मैनहोल लिड्स, सैनिटरी फिटिंग्स। इट इज यूज्ड in making drain pipes, okay, drain pipes and manhole leads, sanitary fittings, sanitary fittings, this is drain pipes, okay, then manhole lids, and sanitary fittings, manhole lids, sanitary fittings, and some like immovable machinery parts. Immovable machinery parts. ओके, चलो बच्चों, अब आप इस राउट आयरन, पिग आयरन के बारे में भी समझ लो। राउट आयरन सॉफ्ट होता था, उसका टेक्सचर अच्छा था, डक्टाइल था बहुत ज्यादा। तो क्या था कि उसको हम लोग घर के काम में यूज कर रहे थे, ग्रिल्स बन रहा था, रेलिंग्स बन रहे थे, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज हो रहा था। अब इस पिग आयरन के बारे में जान लेते हैं। पिग आयरन में क्या है, कार्बन कंटेंट जो वो 2 to 4% ऑफ कार्बन है ना। तो इसका काम कहाँ पे हो रहा है, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रेन पाइप्स। ड्रेन पाइप्स जो होता है, बड़ा बड़ा मैनहोल होता है बड़े बड़े शहरों में। एक सोसाइटी है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस सब का जो कूड़ा कचरा आता है, जो कि वाटर ड्रेन के थ्रू आता है ना, सीवेज के थ्रू आता है, उस सब को क्या है ना कि एक लोहे के पाइप से, दैट मींस इसी कास्ट आयरन के बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े रेडियस के, बहुत ज्यादा डायमीटर्स के पाइप्स होते हैं, और उन पाइप्स के थ्रू इसको डायरेक्टली एक जगह पर ड्रेन किया जाता है, ठीक है, एक जगह पर डिस्पोज किया जाता है। तो वहां पर जो वो बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, वो सब इस राउट आयरन के बने हुए रहते हैं। अच्छा, मैनहोल लीड्स, मैनहोल का मतलब मैनहोल का मतलब क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे क्या होता है ना, दे आर हैविंग अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या है कि एट द जंक्शन, एट सर्टेन जंक्शन, सपोज देर आर 4 or 5 societies, okay, there are 4 or 5 societies or lanes, and all of the sewage, the wastewater from all the 5 society comes to a junction. So here the problem of clogging, okay, water, what you can say, जहां पर कि वाटर बहुत ज्यादा क्लॉग हो जाएगा, नहीं, एक जंक्शन होगा जहां पर वो 5 पाइप एक जगह पे आएगा, है ना। तो वहां पे क्या है कि बहुत जगह से कुछ ज्यादा गंदा कूड़ा कचरा आता है, तो वहां पे क्या होता है ना कि जहां पे 5 जगह पे पाइप एक जगह पे गिर रहा है, उसके सीवेज का पानी एक जगह पे गिर रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है ना कि वहां पे क्लॉगिंग की समस्या हो सकती है। तो ऐसे कुछ जगहों पे क्या किया जाता है ना कि मैनहोल बनाया जाता है, रोड के अंदर है पाइप्स,
isn't it? The drainage system, the pipes are running inside the earth, inside the surface of the earth on which people or vehicles are traveling, isn't it? तो वहां पे क्या है कि लेकिन अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वाटर क्लॉगिंग हो जाती है, तो बाकी पूरे पाइप्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ड्रेनेज सिस्टम विल जस्ट फेल, द ड्रेनेज सिस्टम विल गेट ओवर, और उसके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या किया जाता है ना कि उस जगह पे जहां पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्लॉगिंग की ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पर बड़ा बड़ा कूड़ा कचरा आके फंस सकता है, तो वहां पे एक मैनहोल बनाया जाता है। मैनहोल का मतलब है उतना बड़ा होल जिससे कि कोई एक आदमी, कोई एक मैन उसके अंदर जाके उसको फिर से साफ कर पाए, isn't it? और उसका जो लिड होता है वो रोड पर ही होता है। तो रोड पर तो भाई इतने सारे लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स चल रहे हैं, तो उस चूंकि एक मैनहोल है तो उसके अंदर कुछ भी चला जाएगा, नहीं कोई आदमी है या फिर कोई व्हीकल है तो वो फंस जाएगा, वहां पे बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस मैनहोल को वो होल भी रखना जरूरी है ना, लेकिन उसको ढकना भी जरूरी है। तो उसको ढकने के लिए उतना जो के बड़े बड़े व्हीकल्स का भी के वेट को भी सह सके विदाउट गेटिंग टेम्पर्ड, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड, तो वहां पर उन मैनहोल के लीड्स के लिए क्या इस बिग आयरन का यूज किया जाता है। सो मैनहोल लीड्स, सैनिटरी फिटिंग्स को आप समझ रहे हो, सैनिटरी फिटिंग जो आपके वॉशरूम टॉयलेट्स में यूज होता है, तो उसमें भी सैनिटरी फिटिंग्स में भी राउट आयरन का यूज किया जाता है। इमूवेबल मशीनरी पार्ट, वैसा मशीन का वो सब पार्ट जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वो स्थिर है, स्टील है, तो वहां पे क्या है, इस राउट आयरन का ही यूज किया जाता है। Am I clear? Now the next one is steel. स्टील को आप स्टील आयरन लिख सकते हो, यू कैन राइट डायरेक्टली स्टील। सो द नेक्स्ट इज स्टील, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। स्टील, व्हाट इज इट? अब आप स्टील के बारे में देख लो, हाउ व्हाट इज द कार्बन कंटेंट। सो इन स्टील देयर इज एग्जैक्टली 2% कार्बन। स्टील में क्या है, 2% कार्बन ही होता है और बाकी का आयरन होता है। सो एफईएम ये एक अलॉय है, आपको पता है व्हाट इज अलॉय, व्हाट इज एन अलॉय। सो अलॉय मैंने इससे पिछले क्लास में भी बताया था, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और समटाइम मेटल्स और नॉन मेटल्स आल्सो। दो या दो से अधिक मेटल्स को जोड़ के, मेटल्स के का मिक्सचर बना के, अगर कोई एक मिक्सचर बना दिया गया और उससे यूटेंसिल्स बनाया जा रहा है या फिर कुछ और भी बनाया जा रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ 2 या 2 अधिक मेटल्स से मिलकर जो बनाया गया, उसको हम लोग अलॉय कहते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टील इज आल्सो एन अलॉय। अच्छा, इस स्टील का यूज आप लोगों को पता है कहां कहां पे होता है भाई? रेल्स में, ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, यूटेंसिल्स में। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इसके भी यूज को लिख लो। स्टील के रेलिंग्स जो होते हैं, तो इस रेलिंग में स्टील का यूज किया ही जाता है। तो रेलिंग्स, देन यूटेंसिल्स, बिल्डिंग्स, रेलिंग्स, यूटेंसिल्स, बिल्डिंग्स, ships, machines, automobiles, ships, machines, automobiles, etc. ओके, तो बच्चों यहां पे हमारा आयरन का भी यूज प्रॉपर्टी वो खत्म हो गया। ओके ना? नाउ चलो आप इसको जल्दी से लिख लो। आवर नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम, a very important metal with a variety of use. Really a very 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 important metal, एल्यूमिनियम। हमने कॉपर पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। हमने फिर आयरन पढ़ लिया, सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट मेटल था। उसके बाद फिर आ रहे हैं एल्यूमिनियम पे, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल। द थर्ड वन, चलो अब मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में लिखो। द नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम। द नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम। कम ऑन, राइट इट डाउन। द नेक्स्ट मेटल ऑफ आर इज द थर्ड वन, इट इज aluminium. Okay, I thought I was committing some mistake. It is ALL, na? ALLU, aluminium. What is the symbol? So the symbol of aluminium is Al, capital A and small l. But the problem is ये वाला जो मार्कर है ना, इससे बहुत ही पतला सा लिखा है, बहुत ही थीन सा, इसलिए मुझे बार बार इसको रिपीट करना हो रहा है। इट इज टेकिंग मच टाइम। और अगर मैं इसी मार्कर से ब्लैक की थिकनेस अच्छी है, लेकिन अगर मैं इससे लिखूं तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, नॉट एन इशू। चलो, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। We'll be knowing what is the configuration. It is 2, 8 and 3. किसी में मैंने कंफिग्रेशन नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा चलो, अब एल्यूमिनियम के बारे में, अ सिल्वरी व्हाइट मेटल, राइट? सो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, इट इज अ सिल्वरी व्हाइट metal a very good conductor of electricity, ठीक है, and lightweight, isn't it? Lightweight and you can corrosion or anti-corrosion. Just write a good word like anti-corrosive. I repeat, it is a silvery white metal. Okay. Very good. I'm repeating the things. A very good, conductor. A very good conductor of
electricity, comma, it is also very lightweight. If you wish, you can write it in a point also. It is very lightweight and anti-corrosive. एंटी-कोरोसिव, ओके, लाइट वेट है और एंटी-कोरोसिव भी है। आई थिंक कि अब आप लोगों को थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इधर उधर करके लिखा है ना। ओके, तो एंटी-कोरोसिव भी है, एंटी-कोरोसिव इन नेचर। एंटी-कोरोसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ रहे हो। लाइट वेट एंड एंटी-कोरोसिव। लाइट वेट का मतलब क्या है? हल्का मेटल होता है। आप आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, आयरन का को जिस भी डेंसिटी का लेना है आप ले लो, और सेम डेंसिटी का आप एल्यूमिनियम ले लो, सेम डेंसिटी का आप स्टील ले लो, आपको पता चलेगा एल्यूमिनियम इज द मोस्ट लाइट ऑफ ऑल द मेटल्स। तो क्या है कि यहां पर ये बहुत लाइट वेट होता है। और एंटी कोरोसिव का मतलब है कि एल्यूमिनियम में कोरोजन बहुत लेट से लगता है, जस्ट बिकॉज क्या है कि उसका पहला वाला जो लेयर है ना, वही उसके ऊपर में ऑक्सीजन का एक लेयर हो जाता है, इट्स ऑक्सीडाइज। और वो ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद क्या होता है ना कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन से पूरे मेटल को रोक देता है। तो दिस इज बिकॉज इसको एंटी कोरोसिव या कोरोजन रेजिस्टेंट माना जाता है। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग इसके यूज पर आ जाते हैं। ओके, the first one is it is used write it down. It is used to make क्या भाई? तो कुकिंग यूटेंसिल्स, okay, it is used to make cooking utensils and comma, as it is very malleable, very much malleable, so also in food packaging, foils, okay, it is used in making cooking utensils, food packaging, foils, furnitures, doors, windows, etc. Furnitures, doors, windows, etc. Okay, so aluminum is used in making cooking utensils. आप सबके घर में, आप जरा पता करना, मम्मी से पूछना, सबके घर में एल्यूमिनियम के कुछ ना कुछ बर्तन तो होते ही हैं। और तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना है, खाना नहीं पकाना है। क्यों? क्योंकि उससे माना जाता है ऐसे कि आर्थराइटिस या फिर हड्डी, दैट मींस बोन रिलेटेड डिजीज होते हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में खाना खाने से, है ना, या उसमें बनाने से। लेकिन क्या है कि इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउ। और क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड it is also used
in making. It is also used in making electrical transmission lines for power distribution. For power distribution. मैंने बताया कि एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रेन से कहीं ट्रैवल करोगे ना तो बहुत बड़े बड़े ट्रायंगुलर शेप के बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं और उनसे हाई टेंशन वायर्स जाते हैं। वो सारे हाई टेंशन वायर बच्चों इस एल्यूमिनियम के बने हुए रहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर केबल्स यूज होते हैं उसमें इस ही एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? ओके बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं और एक दो यूज पर। हाँ, इसको हम लोग कुछ और यूजेस को लिख सकते हैं। इट इज यूज्ड इन, और कुछ ऐड कर लेते हैं हम लोग। That's right, it is used in making it is used in making bodies of aircrafts, automobiles and making bodies of aircrafts, ships, etc. एक और बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, इसलिए बच्चों हम लोग एक पॉइंट और इसमें बढ़ा ही देते हैं। एक पॉइंट और क्या है, एल्यूमिनियम is a very good reflector। रिफ्लेक्टर का मतलब आप लोग जानते हो, something that reflects back the light that is incident on it, isn't it? तो aluminium being a very good reflector is used in making, this is why it is used in making concave mirrors, okay, especially in just write it for astronomical telescopes. Astronomical telescopes. I'm repeating the last line, not the last line from the very beginning. Aluminium, atomic number 13. It is a silvery white metal. It is a very silvery white metal, a very good conductor of electricity. You have to write it is also
quite lightweight and anti-corrosive. Okay, now it is used to make cooking utensils, then food packaging foils. आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कुछ भी चीज आजकल फास्ट फूड रोल्स एंड दैट मीन्स चिकन रोल एंड मोमोज, चाउमीन, मैगीज और बहुत कुछ आता है भाई, मुझे तो पता भी नहीं है नाम मोमोज, है ना। तो क्या है कि उन चीजों को जब आप पैक करवाओगे, पार्सल करवाओगे, तो उसमें देखना कि वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उससे लपेट दिया जाएगा, या फिर एल्यूमिनियम का ही कुछ कंटेनर होता है, उसमें इनको डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका खाना होता है, जो फूड होता है, वो काफी गर्म होता है, ठीक है, वो गर्म रहता है। तो इट इज यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, फूड पैकेजिंग फॉइल्स, फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज एटसेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। मैंने पहले ही बता दिया, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एटसेट्रा। बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एटसेट्रा। लास्ट पॉइंट इज एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। मैंने बताया एल्यूमिनियम बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। दिस इज व्हाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग कनकेव मिरर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कनकेव मिरर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको देखने के लिए, तो उन सेलेस्टियल टेलीस्कोप्स में एज रिफ्लेक्टर या फिर कॉन्केव मिरर के रूप में इस एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट मेटल पर फोकस करेंगे एंड आवर नेक्स्ट मेटल इज now our next metal is zinc. Okay, our next metal is zinc. Come on, let's do it. The next metal is the fourth one. Our fourth metal is zinc. What is the symbol of zinc? It is Zn. Okay, zinc is Zn. Atomic number is 30. The atomic number of zinc is 30. Come on, start writing. It is a bluish white metal. जिंक के बारे में क्या है? इट इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल। सारे प्रॉपर्टीज के पास मेटालिक ही है, बट इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, जो स्ट्राइक करने से वो फैलता नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट मैलिएबल एट ऑल, वो टूट जाता है, ठीक है, टूट जाएगा। सो अ ब्लूइश व्हाइट मेटल दैट इज ब्रिटल इन नेचर। इट इज यूज्ड द फर्स्ट पॉइंट इज, चलिए लिख लीजिए इसको। द फर्स्ट पॉइंट इज, आई एम रबिंग इट नाउ। पहले मैं इन चीजों को मिटा दूं, वरना आप लोगों को शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। जो चीज हमारे काम का नहीं है, मैं उसको यहां से पूरा पूरा ड्रॉप कर देता हूं। ओके, चलिए जिंक के बारे में लिख लो। It is used in the galvanization of, लिखो, it is used in the galvanization
iron. It is used in the galvanization of iron. Why? Because galvanization of iron, of course, to prevent it from rusting. I repeat, to prevent it from rusting. I'm writing it is used in the galvanization of iron to prevent it from रस्टिंग। क्या मतलब है? गैल्वेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। चलो बच्चों, पहले मैं सारा कुछ लिख देता हूं, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग और टू मेक अलॉयज लाइक ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। टू मेक अलॉयज like brass and German silver. Okay, you'll be getting a stat of some of the names of some of alloys and their contents. ठीक है, मैं आपको इसके जस्ट बाद कुछ अलॉयज के नेम, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किन किन अलॉयज की बात हुई है, उन सारे अलॉयज के नेम और उनके कंटेंट का मैं आपको चार्ट दूंगा। ठीक है, now it is used in making electrodes in dry cells. In making electrodes in dry cells. ठीक है, making electrodes in dry cells. Now the next one is एक पॉइंट आप यहां पे और ऐड करो, इट इज यूज्ड इन डाई कास्टिंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डाई कास्टिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Die casting in the automobile industry. मैंने इस लाइन का बॉर्डर इसलिए कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाता कि कौन सा लाइन किसका है भाई, है ना? अब तो ठीक होगा, आई थिंक। It is used in die casting in automobile industry. Die casting में जो किसी ऑटोमोबाइल में किसी चीज पर रंग चढ़ाना होता है, तो डाई कास्टिंग में there is a term something like this in which die मतलब ऑटोमोबाइल्स पर कलर रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो डाई कास्टिंग में भी इस जिंक का यूज किया जाता है। Now a very good point related to the zinc is it is used in the extraction of gold and silver. It is used in the extraction of gold and silver. Extraction of gold and silver, why? Gold and silver from their ores. Why and how? As
बिकॉज आपको पता है कि जिंक का जो पोजीशन है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे मेटल नॉन मेटल का एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि जिंक का जो पोजीशन है वो गोल्ड और सिल्वर से काफी हाई है, ठीक है ना। तो इस जिंक का यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में। वो है बिकॉज, जस्ट राइट इट ओवर हियर, बिकॉज scrap zinc, that is, what is the meaning of this scrap zinc? It is a type of zinc powder, because this scrap zinc displaces these metals from their salt solutions, okay, without affecting the texture, of course, without affecting the texture of these very metals, okay। तो बच्चों, अब हमारे पास आ गया है जिंक का पूरा प्रॉपर्टी। अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक मेटल पे और जाएंगे ताकि एटलीस्ट हम लोग 5 मेटल को इस वीडियो में कर लें। जिंक, अ ब्लूइश व्हाइट मेटल। व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक? इट इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल। इट इज ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल होता है, ओके। इट इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, दैट इज व्हाई जिंक शुड बी यूज्ड इन द शिप्स। नहीं, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना कि आयरन पर रस्टिंग होता है, आपको पता होगा, द corrosion of iron is called rusting. So to prevent iron from rusting, to prevent iron from getting corroded, a layer of zinc is being coated on the topmost layer of iron, which prevents the oxygen present in air together with moisture to attack the topmost layer of iron, which results in the prevention of iron from rusting, isn't it? तो यही जो जिंक का लेयर बच्चों चढ़ा दिया जाता है आयरन आर्टिकल्स पर, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक कोटिंग ओवर आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग इज डिफाइंड एज गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन में तो आपको पता होगा कि जिंक का यूज किया जाता है। अगर शिप्स में भी आपको पता है कि आयरन होता है, तो शिप्स तो हमेशा से पानी में होता है ना, सी वाटर, और वो भी सलाइन वाटर होता है, तो वहां पे कोरोजन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पर शिप्स को एंटी कोरोसिव बनाने के लिए, शिप्स में जो आयरन है उसको कोरोजन से हटाने बचाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक का मतलब गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। नाउ इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज लाइक ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। अलॉयज के बारे में आपको पता है, तो ब्रास जो है, ब्रास हो, ब्रोंज हो, इस तरह का बहुत सारा अलॉयज है ना, जर्मन सिल्वर है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके बाद में आप लोगों को एक अलॉयज का लिस्ट दे दूंगा, चार्ट टाइप, ओके। उसमें आपके पास सारे अलॉयज का जो भी कार्बन कंटेंट, जो कंपोजिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो सब मिल जाएगा। तो इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज लाइक ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। ब्रास और जर्मन सिल्वर में भाई ये तो क्लियर हो गया कि जिंक रहता है। इट इज यूज्ड इन डाई कास्टिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डाई कास्टिंग टर्म, इस चीज को हम लोग डाई कास्टिंग को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अपने बुक में, तो डाई कास्टिंग में भी यूज होता है ना, ओके। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ड्राई सेल्स में, आप लोग जो बैटरीज यूज करते हो, टॉर्च वाले बैटरी, पेंसिल बैटरी, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, स्पेशली नेगेटिव इलेक्ट्रोड, आई रिपीट, स्पेशली नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बनाने में इस जिंक का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता होगा मेटलर्जी में, मेटलर्जी आप लोगों के इसमें बहुत ज्यादा है तो नहीं, लेकिन क्या है कि मेटलर्जी में क्या होता है ना कि जितने भी मेटल्स हैं उनको उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एज पर द मैटर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज कंसर्न, अगर गोल्ड और सिल्वर को का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ऑल्दो दिस मेटल अकर फ्रीली, लेकिन वहां पर भी एक्सट्रैक्शन का कुछ अगर इम्प्योरिटीज है तो उसको हटाना है, तो उसके एक्सट्रैक्शन में इस जिंक का, स्क्रैप जिंक, दैट इज एक्चुअली ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक और पाउडर्ड जिंक, उसका यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से
रिएक्टिविटी सीरीज में, एज फॉर द मैटर ऑफ रिएक्टिविटीज एक्टिविटी इज कंसर्न, जिंक इज फार मोर एक्टिव इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से गोल्ड और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है जिंक, है ना, तो वहां पर एक्सट्रैक्शन में यूज हो जाता है। सो हियर वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ जिंक। नाउ द लास्ट वन for today, for this topic, the last one is lead. Come on, write it down as soon as possible, as fast as possible. Okay, our last element is, metal is lead. The fifth one. The fifth one is lead. Okay. Ball is PB. And why PB? Because the name is, Latin name is plumbum. P-L-U-M-B-U-M. Plumbum. Okay. So now I think I should remove this all. आप सब लोगों ने लिख ही लिया होगा। So, write one thing, a soft silvery white or grayish metal. A soft, comma, silvery white or grayish metal. Okay, soft silvery white or grayish metal. Right, one more thing, it is a poor conductor of electricity. It is a poor conductor of electricity, okay? Which is quite toxic in nature. Toxic in nature, but an excellent radioactive radiation absorbent. Excellent radioactive absorbent is radioactive radiation absorbent, but an excellent radioactive radiation absorbent. चलो बच्चों, आज के लिए ये हमारा लास्ट मेटल है। द नेक्स्ट क्लास will come with more metals, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, है ना। एंड देन इस तरह से हमारा
चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो चैप्टर में है उन चीजों का बस क्या है, नोट्स बना लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लीड इज इट इज यूज्ड टू मेक लाइनिंग्स फॉर सिंक पाइप्स। इट इज यूज्ड टू मेक लाइनिंग्स for sink pipes and other sanitary fittings. लाइनिंग्स फॉर सिंक पाइप्स, सिंक पाइप्स के जो लाइनिंग्स होते हैं, लाइनिंग्स ऑफ द सिंक पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स, इस तरह से लेड का यूज सिंक पाइप्स की जो लाइनिंग्स होते हैं ना उनमें यूज किया जाता है, और सैनिटरी फिटिंग्स में और भी सैनिटरी फिटिंग में इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है। अच्छा, क्यों ऐसा है? बिकॉज it doesn't react with impure water or mild acids or alkalis। क्या है कि जहां पे सिंक्स हैं या फिर टॉयलेट्स की बात है, सैनिटरी फिटिंग्स की बात है, वहां पे क्या है ना कि माइल्ड बेस अल्कलीज का प्रोडक्शन हो सकता है, एसिड्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर इम्प्योर वाटर इम्प्योर है, बहुत कुछ मिला हुआ है, तो वहां पे और चीजों को डालना, वो थोड़ा भी रिएक्टिव होगा तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो लेड क्या है, माइल्ड बेसेस या एसिड्स या इम्प्योर वाटर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे क्या है कि हमारा सामान ड्यूरेबल रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम तक चलता रहता है। ओके, तो इसलिए लेड को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक लाइनिंग्स फॉर सिंक पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद इम्प्योर वाटर और माइल्ड एसिड्स और बेसेस। ओके, अच्छा, यूज्ड in making alloys like solder or type metals, used in making alloys like solder or type metal। सोल्डर या टाइप मेटल, सोल्डर एंड, यहां पे एंड कर दीजिए। टाइप मेटल भी क्या है, एक अलॉय ही है। सोल्डर एंड टाइप मेटल। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट लिख लेना है। इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज। सोल्डर आप लोगों को पता होगा बच्चों, जब भी आप टीवी मोबाइल को ठीक करवाने जाओगे, जब उसके मदरबोर्ड को खोल दिया जाता है तो उनके पास क्या होता है ना, एक इतना बड़ा सा रड टाइप होता है, उसमें बहुत छोटा सा पॉइंट निकला होता है, और उसको वो छोटे छोटे तार में इस तरह से सटाते हैं, वहां से धुआं आता है और वो तार चिपक जाता है। दैट इज कॉल्ड सोल्डिंग मशीन। तो सोल्डिंग मशीन में जो कंपाउंड यूज होता है, जिसके कारण से वो जो कंडक्टर, वो जो छोटे छोटे तार से वो वायर्स वो चिपक जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सोल्डर। और सोल्डर में क्या होता है, ये इनलेट होता है। नाउ इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज एंड coverings of
underground electrical or telephone cables, electrical or telephone cables. ओके, एक पॉइंट आप और चाहो तो लिख सकते हो, it is used as protective shielding. Protective shielding. It is used as protective shielding for X-rays and other harmful radioactive radiations. For X-rays and other harmful radioactive radiations. I repeat the things. मैं एक क्लास में रिपीट कर रहा हूं चीजों को, आप लोग जहां पे नहीं लिख पा रहे हो उसको प्लीज सुन के लिख लेना. लेड, बीबी, प्लम्बम, अ सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट या ग्रेइश मेटल. सॉफ्ट होता है सिल्वर व्हाइट या ग्रे कलर का मेटल होता है. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कीप इट इन योर माइंड. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज क्वाइट टॉक्सिक इन नेचर. लेड is not meant to be eaten, to be consumed, okay, because it is quite toxic or poisonous in nature, but an excellent radioactive radiation absorbent. लेकिन क्या है कि रेडियोएक्टिव रेज जो होते हैं, जो कि जैसे आप एक्सरेज को देख रहे हो, ये सब क्या है कि बहुत ही खराब रेज है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से. रेडियोएक्टिव रेज है, रेडिएशंस है. तो इन सारे रेडिएशंस को जो ये मेटल है लेड, ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है अपने में विदाउट गेटिंग पेनिट्रेटेड बाय इटसेल्फ. ओके, अब इसके यूज को देख लो. इट इज यूज्ड टू मेक लाइनिंग्स फॉर सिंक पाइप्स में या फिर अदर सैनिटरी फिटिंग्स में यूज किया जाता है बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद इम्प्योर वाटर. इट्स इम्प्योर वाटर और माइल्ड एसिड्स और एल्कलीज. माइल्ड एसिड, अरे भाई वाटर में जो मिलके हो रहा है दैट विल बिकम अ माइल्ड एसिड. नहीं, जो जिस एसिड का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ही वो ज्वलनशील नहीं हो हमारे शरीर के लिए. और अल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज. तो क्या होता है ना कि ये सिंक पाइप्स या सैनिटरी फिटिंग्स में अगर इसको यूज किया जाता है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके खराब नहीं हो जाता है. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि लेड की जरूरत बहुत हो जाती है ताकि हमने जो जिस चीज को यूज किया है अपने किचन में या फिर अपने बाथरूम्स में, वो क्या है कि वो बरकरार रहे, बहुत जल्दी खराब नहीं हो. Then it is also used in making alloys like solder and tight metal. Tight metal जो एक alloy है और solder, इसमें lead का यूज किया जाता है. It is used in making car batteries. कार में जो बैटरीज होते हैं उसमें lead का यूज किया जाता है. And covering of underground electrical और टेलीफोन केबल्स. आजकल जो इलेक्ट्रिकल और टेलीफोन केबल्स आप देख रहे हो अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर रहने से क्या है, पंछियों को खतरा हो रहा है जो, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है ना. तो वहां पर उसको कम करने के लिए टू रिड्यूस द रिस्क दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द हैंगिंग वायर्स, उसको क्या किया जा रहा है, अंडरग्राउंड किया जा रहा है. तो टेलीफोन वायर्स और केबल्स जो है या फिर इलेक्ट्रिकल केबल्स जो अंडरग्राउंड कर दिया जाता है. तो अंडरग्राउंड में तो बहुत सारे अनसीन कंपाउंड्स, अनरेड कंपाउंड्स और मॉइस्चर होता है. तो वहां पर तो आयरन या वैसे किसी भी मेटल को दिया जाएगा तो वो साल 2 साल में बहुत पूरा खत्म हो जाएगा. तो वहां पे क्या है ना कि उन चीजों को कवर करने के लिए जो कंडक्टर्स होते हैं, जो केबल्स होते हैं, उसको कवर करने के लिए भी इस लेड का यूज किया जाता है अंडरग्राउंड में. ओके, नाउ लास्ट, इट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव शील्डिंग फॉर एक्सरेज. एक्सरेज का जो एक्सरे आता है, आप देखोगे एक्सरे जहां पर भी होगा ना, उसके पीछे कोई एक ऐसा स्क्वायर टाइप का एक प्लेट जैसा दिया जाता है. ठीक है ना, या आपको जिसमें सुलाया जाएगा वो क्या है कि वो एक प्रोटेक्टिव शील्डिंग है. उससे एक्सरे उस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, या फिर अदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियोएक्टिव रेडिएशंस है, जो भी रेडियोएक्टिव रेडिएशंस है उन सब से खुद को बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिव शील्डिंग के लिए. नहीं, अरे भाई
आंख पे जैसे बहुत ज्यादा धूप लगता है तो हम लोग गॉगल्स पहनते हैं, उस तरह से अगर रेडियो एक्टिव रेज आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाएगा, गॉगल्स और ये स्पेक्स काम में नहीं आएगा, तो क्या है कि वहां पर लेड को यूज किया जाता है, लेड से वैसा प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया जाता है। तो बच्चों आई थिंक आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आप लोगों ने कॉपर का देख लिया, देन आयरन का देख लिया, देन एल्यूमिनियम देख लिया, देन हमने लेड देख लिया, है ना। उससे पहले मतलब हमने 5 मेटल के यूज को आज देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट मेटल और मेटल्स को लेके आएंगे। उसके बाद नॉन मेटल 2 से 3 क्लास में हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। सो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।